جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی سب سے بڑی کتاب اپنے تخت کے نیچے دفن کرنے کا حکم دیا تو اس کتاب میں سے ایک صفحہ کسی نے پھاڑ کر اپنے پاس رکھ لیا۔ آج دنیا میں جتنا بھی جادو ہے وہ اسی ایک صفحے کی بدولت ہے، اور جادو کے متلاشی لوگ آج بھی اس کتاب کو ڈھونڈتے آ رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی اہم ہے۔ بہت سے لوگوں پر جب کوئی آفت یا پریشانی یا بیماری آتی ہے تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ شاید کسی نے ان پر جادو کر دیا ہے۔ وہ مختلف عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ورد وظائف کرتے ہیں، جادو کو توڑنے کی بے انتہا کوششیں کرتے ہیں، جبکہ ان پر کوئی جادو نہیں ہوتا۔ عامل حضرات اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے پیسے بٹورتے ہیں اور اپنا دھندا جاری رکھتے ہیں۔ یہ عامل حضرات ان لوگوں سے مختلف عملیات کرواتے ہیں اور ان کے گلے میں مختلف تعویذات پہنا دیتے ہیں۔ پہلے جو بیماری، پریشانی یا تکلیف معمولی ہوتی ہے وہ ان تعویذات سے مزید بڑھ جاتی ہے۔ وہ لوگ اپنے گلے میں ان تعویذات کو ہی واپس گھر نہیں لاتے، بلکہ ان کے ساتھ جڑی کئی غیر مرئی طاقتوں جیسے موکلات اور جنات کو بھی گھر لے آتے ہیں، اور شفا یاب ہونے کی بجائے مزید بیمار اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جادو ہمیشہ ہوا کے ذریعے ہوتا ہے۔ جہاں پر ہوا نہ ہو وہاں جادو نہیں پہنچ سکتا، اور یہ ہوا ہی جادو کے ہونے یا نہ ہونے کی مختلف نشانیاں دیتی ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا کہا گیا تو سوال کرنے والا اتنا ضرور جانتا تھا کہ زمین کے گرد جو ایئر سفیئر ہے اس کے آگے اسپیس ہے جہاں ہوا نہیں ہے، اور چاند اس سے کہیں پرے ہے۔ وہ یہ جانتا تھا کہ جادو کے ذریعے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکا۔ چاند تو 2 ٹکڑے ہو گیا، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ نے کچھ دلوں کے اوپر تالے لگا چھوڑے ہیں۔ وہ اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے۔ ناظرین، جادو جب بھی ہوتا ہے اس کی کچھ مخصوص نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ جادو ہے بھی یا نہیں۔ اگر کسی کی زندگی میں یہ نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں تو کسی پر یقین مت کریں کہ آپ پر جادو ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہونے والی ہے، اسے آخر تک دیکھیے گا۔ آپ جان جائیں گے کہ آپ پر جادو ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو اس کا توڑ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کا اور ہمارا رابطہ بنا رہے۔ ناظرین، جادو کا تعلق ابلیس اور شیاطین سے ہے۔ کالے جادو میں ابلیس اور شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے۔ یہ جادو اس لیے انتہائی خطرناک ہے کہ اس میں انبیاء کرام کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا جاتا ہے، قرآن پاک کی توہین کی جاتی ہے اور قرآن پاک کی آیات کو الٹا پڑھا جاتا ہے۔ کبھی کبھار قرآن پاک کی آیات کو غلیظ سیاہی یا خون سے لکھا جاتا ہے۔ ایسے کام کر کے شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے اور پھر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایسے افراد کو چن چن کر قتل کیا گیا جو ڈائریکٹلی جادو میں انوالو تھے۔ ان لوگوں کی گردنیں اڑائی گئیں جو لوگوں کے لیے وبال جان بن چکے تھے اور جادو کے ذریعے لوگوں کو تکالیف پہنچاتے تھے۔ آج کل تو ہر تکلیف، پریشانی، بیماری کا سبب لوگ جادو کو ہی ٹھہراتے ہیں، کیونکہ ہمارے حلقہ احباب میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو ہمیں پریشان دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک بات ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہم پر جادو ہوا ہے۔ کسی کا رشتہ نہیں مل رہا، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، کہیں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ختم نہیں ہوتا، تو ہر چیز کا ذمہ دار جادو کو ہی ٹھہرا دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ کاروبار شاید کسی کی سستی یا کاہلی کی وجہ سے نہ چل رہا ہو۔ کسی کو نوکری نہیں مل رہی تو اس کا سبب بھی جادو کو سمجھا جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے کائنات بنا کر شاید جادوگروں کے سپرد کر دی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھار انسان کے اپنے اعمال بھی اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں، تکلیفوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ انسان جب مکافات عمل کی چکی میں پستا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید اس پر جادو ہوا ہے۔ کئی لوگ یہ مانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا، جبکہ میرا ماننا ہے کہ کائنات کی کوئی نیگیٹیوٹی سرکار دو عالم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी नहीं फटक सकती। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व यतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का फैसला है कि कोई रिजस निजासत आपके पास नहीं आ सकती। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि जादू की नेगेटिविटी या नेगेटिव वेव्स आपके करीब से गुजरी हूँ? मेरे ख्याल से ये सिर्फ हमें बताने और दिखाने के लिए था कि जादू ऐसे भी हो सकता है। जादू की अलामात एकदम से जाहिर नहीं होती, बल्कि डिफरेंट स्टेजेस में डिफरेंट अलामात जाहिर होती हैं। जब किसी पर जादू किया जाता है तो इब्तदाई मरहले में ये अलामात जाहिर होंगी। आपको ख्वाब में शेर, सांप, कुत्ता, छिपकली, बिच्छू, बिल्ली और दरिंदे नजर आएंगे। आप ख्वाब में कच्चा गोश्त देखेंगे। नींद की हालत में रोने और हंसने लगेंगे। अचानक से सीने पर वजन महसूस होने लगेगा। नींद से ऐसे उठेंगे जैसे किसी ने पकड़कर जोर से झटके से उठाया हो। ख्वाब में किसी को अपना पीछा करते देखेंगे। आपको ख्वाब में डरावनी शक्लें और पुरस्रार चीजें नजर आएंगी। आप खौफजदा रहने लगेंगे। आपकी नींद कच्ची होती चली जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता नींद नहीं आएगी। बुलंद मकाम से खुद को गिरता देखेंगे। खुद को किसी मुर्दा खाना या कब्रिस्तान या खंडरात और वीरानों में पाएंगे। अगर ख्वाब में आप कुछ खाएंगे तो उसका टेस्ट आपको जागने के बाद अपनी ज़बान पर फील होगा। आप अपने इर्द गिर्द चलते फिरते बदबू को महसूस करेंगे। अगर इनमें से कोई निशानी जाहिर हो और बार बार हो तो समझ जाएं कि किसी ने ताज़ा ताज़ा जादू किया है। जादू की सेकंड स्टेज ऐसी है जो ज़्यादा ख़तरनाक है और जिसमें किसी की मौत भी हो सकती है। ये ऐसी अलामात हैं कि जिन पर आपने ज़्यादा गौर करना है। अगर आपको हद से ज़्यादा थकावट महसूस होने लगे, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगे, आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगे, दोस्तों और रिश्तेदारों में बड़े बड़े झगड़े पैदा होने लगे, अज़दवाजी ज़िंदगी बद से बदतरीन होती चली जाए, आपके दिल में शको शुबहात जगह ले लें या अज़दवाजी ताल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो जाएं और बात तलाक तक पहुंच जाए, अपने घर वालों, बहन भाइयों, बीवी बच्चों से नफरत होने लगे, आपके सीने में या कमर के नीचे वाले हिस्से में बोझ, दबाव या दर्द महसूस हो, आपके सर और कमर में सुइयां चुभने लग जाएं, नमाज, कुरान, किरात, तलावत सुनने से आपको तंगी महसूस हो, दीन के बारे में आप कुफ्र या कलमात कहना शुरू कर दें, आपके जिस्म पर खुद ब खुद कट के निशान आने लग जाएं, अल्लाह के आगे सजदा रेज होना आपको बुरा महसूस हो, आपके अपने जिस्म पर किसी और के बाल नजर आएं, अपने इर्द गिर्द खाने पीने की अशिया में आपको सख्त बदबू महसूस हो, या आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस रहने लग जाए, या आपको लगे कि आप किसी की ना चाहते हुए भी गुलामी कर रहे हैं और उसकी हर बात को हरफे आखिर समझ रहे हैं, आपके जोड़ों में दर्द रहने लग जाए और डॉक्टर्स को आपकी बीमारी समझ ना आ रही हो, आपके टेस्ट बिल्कुल क्लियर हों और बीमारी अपने अरूज पर हो, अपने कंधों पर बहुत ज्यादा वजन महसूस होने लगे, तो ये जादू की वो निशानियां हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर मियाँ पर जादू हो तो वो बीवी से नफरत करने लगेगा और बीवी पर जादू हो तो वो अपने शौहर से नफरत करने लगेगी। ऐसे में फौरी तौर पर आपको जादू के इलाज की तरफ बढ़ना है, जो कि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़की पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, तालीम याफ्ता है, उसकी उम्र भी मुनासिब है, मगर लोग रिश्ता देखने आते हैं या इनकार कर देते हैं या रिश्ता घर तक पहुंचता ही नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि मियाँ बीवी बिल्कुल ठीक हैं मगर औलाद नहीं है, या औलाद पैदा ही नहीं होती या पेट में ही मर जाती है, या बच्चा पैदा हो जाए तो कुछ देर बाद 40 दिन से पहले पहले वो भी मर जाता है। देखने में ये भी आया है कि मियाँ बीवी जो बिल्कुल ठीक रह रहे होते हैं, घर में किसी चीज की कमी नहीं होती, बिला वजह उनमें बहस छिड़ जाती है, बहस के बाद झगड़े और झगड़ों के बाद बात आखिरकार तलाक तक पहुंच जाती है। लोग किसी से इंतकाम लेने के लिए जादू के जरिए उस पर बीमारी भी मुसल्लत कर देते हैं, और ऐसी बीमारी जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं जाता। एक चीज ठीक होती है तो दूसरी खराब हो जाती है, एक बीमारी से शिफा होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है।
डॉक्टर्स को समझ में ही नहीं आता कि मेडिकल टेस्ट क्लियर हैं और इंसान इंतहाई बीमार है। आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा तब होता है जब जादू पुराना हो चुका होता है और नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। खुदा न खास्ता अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसी अलामात नज़र आएं तो आपने फौरी इसका हल तलाश करना है। उसके लिए आपको किसी पीर बाबा या किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने बीमारी अगर इंसान के अंदर रखी है तो उसकी शिफा भी इंसान के अंदर ही मौजूद है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान समझता है कि उसका जिस्म छोटा सा है, जबकि वो नहीं जानता कि इसके अंदर कितना बड़ा जहान पोशीदा है। तो बिला ताखीर बात करते हैं इस जादू और जादू से फैलाई गई इन जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के इलाज के बारे में। नाज़रीन, लाहौर की सरजमीन पर एक बहुत बड़े आशिके अल्लाह, वली अल्लाह, फ़कीर गुजरे हैं जिनका नाम सैयद सफदर अली बुखारी रहमतुल्लाह अलैह है। आपने तमाम जिंदगी दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए सर्फ की और एक ऐसा तरीका इलाज मुतारिफ कराया जिससे न सिर्फ इंसान जादू और बीमारियों से निजात हासिल कर लेता है बल्कि अल्लाह के करीब भी हो जाता है। साइंटिस्ट जब साउंड एंड वेव थेरेपी पे काम कर रहे थे उस वक़्त अल्लाह के ये वली अपना काम मुकम्मल कर चुके थे। आपने अल्लाह के कलाम से ऐसी बीमारियों का इलाज किया कि जो बीमारियां लाइलाज थीं, जिन बीमारियों का इलाज मेडिकल साइंस में मौजूद नहीं था। फकीर की इस साउंड एंड वेव थेरेपी से न सिर्फ मुसलमानों ने बल्कि हिंदू, सिख, ईसाइयों और दूसरे मज़ाहब के लोगों ने भी शिफा हासिल की। जैसा कि मैंने बताया कि जादू हवा के ज़रिए होता है और आपके माहौल में मनफी ताकतें घर कर जाती हैं। तो जादू के तोड़ के लिए आपने अपने माहौल को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदलना होता है। आपने करना ये है कि सूरह अल रहमान कारी अब्दुल बासित मिस्री की आवाज़ में बगैर तर्जमे के अपने घर में ऊंची आवाज़ में लगानी है। पानी का आधा गिलास अपने पास रखना है और आंखें बंद करके 21 मिनट की तलावत को ऐसे सुनना है जैसे आप अल्लाह के रूबरू पेश हैं। अल्लाह जो शारक से ज़्यादा नज़दीक है वो आपके दिल की बात सुन रहा है। जब किसी की बारगाह में पेश होते हैं या किसी के घर जाते हैं तो उसके लिए कुछ तोहफे तहाइफ लेकर जाते हैं। वैसे हमारी औकात नहीं कि हम अल्लाह को कुछ दें, लेकिन आपने ये करना है कि जितने लोगों ने आज तक आपको दुख, तकलीफें, परेशानियां दी उन्हें अल्लाह की मखलूक समझकर दिल से माफ़ कर देना है और सूरह रहमान को दिल के कानों से सुनना है। आपके घर में जहाँ जहाँ तक ये आवाज़ जाएगी नेगेटिविटी, जिन्नात, जादू सब दूर होता जाएगा और अल्लाह की रहमत बरसने लगेगी। 21 मिनट की इस तलावत के दौरान अल्लाह की रहमत को फील करना है और जब तलावत मुकम्मल हो जाए तो वो आधा पानी का गिलास हाथ में पकड़ना है तो आंखें बंद करके डूब के दिल में 3 दफ़ा अल्लाह 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 पुकारना है। अल्लाह का नाम ज़बान से नहीं दिल से पुकारना है और बंद आंखों के साथ ही उस पानी को 3 सांस या 3 घूंट में पी लेना है। पानी ऑब्जर्वेंट है, यही पानी जो आप रोज पीते हैं। इसका टेस्ट आपको खुशबूदार, मीठा या जमजम की तरह थिकर फील होगा। ये पानी आपके जिस्म में जहाँ जहाँ से गुजरेगा नेगेटिविटी और मनफी ताकतों को बहाता हुआ अपने साथ ले जाएगा। अगर जादू की अलामात या बीमारी अभी नॉर्मल है तो दिन में 1 दफ़ा इस अमल को करें और अगर जादू या बीमारी बहुत शिद्दत पकड़ चुकी है तो इस अमल को दिन में 3 बार 7 दिन के लिए करना है, ना 7 दिन से ज्यादा ना 7 दिन से कम। इस दौरान आपको शैतान मुख्तलिफ वसवसे डालकर रोकने की कोशिश करेगा और अगर ये अमल आपने 7 दिन लगातार कर लिया तो आपको अपने अंदर से आवाज आएगी कि अब आप पर कोई जादू नहीं है और आप अल्लाह के करीब होते चले जाएंगे। इस दौरान आपको ख्वाब में भी बहुत से इशारे मिल सकते हैं और आपको अपनी सेहत दिन ब दिन बेहतर होती दिखाई देगी। जब आप शिफा याब हो जाएं तो ये तरीका अपने हल्का अहबाब में दुखी और परेशान लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखे और अपनी मार्फत का रास्ता अता फरमाए। आप खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।